Uh, Hello students, last time we have discussed protista classification. Okay, today we will start chrysophytes. Okay, photosynthetic protista, that is chrysophytes. Okay, there were three groups: dinoflagellates, euglenoids and chrysophytes. One by one we will discuss. So first is chrysophytes. Okay, now what are the chrysophytes? It mainly include diatoms. इसमें क्या आते हैं? Diatoms आते हैं और उनको हम लोग golden algae कहते हैं, known as golden algae. Okay, and it includes diatom. Includes diatoms. Okay, now दे आर मेनली एक्वेटिक. ये एक्वेटिक में पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. ओके, अकर इन, इसके हैबिटेट क्या है? दे आर एक्वेटिक और यू कैन से मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल्स. Moist terrestrial habitats. Microscopic. Fifth point is photosynthetic organism. And very important point is their cell wall is made up of silica. Okay, तो स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस. जो सेल वॉल होता है वो उस पर क्या डिपॉजिट होता है? सिलिका. सिलिका, रिमेंबर दिस वर्ड. ओके, तो बॉडी इज कवर्ड बाय, इनका स्ट्रक्चर जो रहता है सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके, बॉडी जो रहती है वो कवर्ड रहती है बाय अ ट्रांसपेरेंट सिलिशियस सेल. और ब्रैकेट में राइट डाउन, सिलिका डिपॉजिट होता है उनके सेल वॉल में. जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रुस्ट्यूल. FRUSTULE. ओके, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर्स मैंने बताया ना, सोप लाइक होता है. सोप बॉक्स लाइक, सॉरी, ये ऐसे रहता है नीचे और ये ऐसे फिट रहता है. ओके, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वॉल्व्स. सोप लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो जो फ्रस्ट्यूल रहता है, फ्रस्ट्यूल उस पर टू वॉल्स होते हैं. जो अपर पार्ट होता है उसको एपिथिका एंड लोअर पार्ट इज नोन एज हाइपोथिका. द टू, ये एक वॉल्व से ये दूसरा वॉल से वो ऐसे फिट होते हैं जैसे सोप बॉक्स होता है. ओके,
and they are of a variety, they do not possess flagella. Okay. One more, the two walls, two walls fit together like so, and what this is soap like structure. And what happened, जो siliceous fistules होते हैं, वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सिलिशियस फिस्टूल्स वो डिके नहीं होते हैं. स्टूल्स do not decay easily. ओके, तो व्हाट हैपन, जो सिलिका फिस्टूल्स होते हैं वो डिके भी नहीं होते. तो जब वो डिके नहीं होंगे वो क्या होते हैं, पाइलअप हो जाते हैं, लेयर बाय लेयर वो फॉर्म होते हैं. दे पाइल अप एट द बॉटम of water bottom reservoirs and form big heaps called diatomaceous earth. Diatomaceous earth, very important. ये 100 मीटर्स तक भी एक्सटेंड हो जाते हैं. सो ओके, तो स्ट्रक्चर क्या रहता है इसमें, जो ये सिलिका डिपॉजिट रहता है, ठीक है, सेल वॉल में सिलिका डिपॉजिट रहता है, बॉडी सिलिशियस शेल की बनी, उसको हम फेस्टिवल्स कहते हैं, और 2 वॉल्स होते हैं जो कि सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं. ओके, जिससे सोप फिट रहते हैं, और ये जो होते हैं डिके नहीं होते हैं, तो ये पाइलअप हो जाते हैं, विच इज़ नोन एज डायटोमेशियस अर्थ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फूड रिजर्व. So food reserve is in the form of oil and leucocin, leucocin. It is LEUCOSIN, leucocin. What is leucocin? It is polysaccharides. Okay, and how they move, they move with the help of, मतलब how they float, because they don't have flagella. When they don't have flagella, then how they float with the help of fat. Okay, float due to oil, or you can say volutin globules.
Next is reproduction. So reproduction is mainly by binary fission. As well as sexual reproduction. And one more thing regarding the symmetry, it is of two types, pinnate and centric. ये स्ट्रक्चर में इंक्लूड होगा. ओके, it is included, this part is included in structure. So symmetry, if we'll discuss two type of mainly two types. Pinnate. Okay, what you mean pinnate? It show bilateral symmetry. Pinnate, it show bilateral symmetry. And another one is centric. First is pinnate, second is centric, in bracket write down circular, and it shows which type of symmetry? Radial symmetry. Okay, and chloroplast is also formed. Okay, note down this point. Chloroplast, or you can say chromatophores are yellowish brown to greenish brown. ठीक है, क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, और डाई आइटम्स में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है. ब्राउन एल्गी, फ्यूकोजेंथिन ही जो रहता है ब्राउनिश टिंच प्रोवाइड करता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन्स विच प्रोवाइड्स ब्राउनिश टिंच. ओके, एंड वन मोर थिंग्स, जो फ्रस्ट्यूल्स होते हैं वो बहुत ही उस पर पोर्स और रिजेस पाए जाते हैं. एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. हाँ, what are the economic importance? डाई आइटम्स जो रहते हैं इस वो क्या होते हैं? पोरस होते हैं. ओके, यूज्ड इन filtration of, you can say, sugar, alcohol, oils, and syrup. Okay, cleaning agent in toothpaste. They are very important photosynthesizers. और ऑर्गेनिक मैटर जितने भी सिंथेसाइज होते हैं, 1 मिनट, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो सिंथेसाइज, इन द वर्ड्स सिंथेसाइज बाय them. Okay, diatom, it is porous and chemically inert. Insulator act as insulation material. So this is all about this. Industrial catalyst, pollution indicators. So there are lots of.